वेलकम बैक गाइस एंड इस वीडियो में जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो यहाँ पर जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम कहें कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर एक साथ एप्लीकेबल होगी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। तो जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो हम उन सारी स्ट्रैटेजीज़ को ऑल द प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी हमारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है हमारी इंडस्ट्री के अंदर या हमारे जो बिज़नेस है उसके अंदर, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने की बात हम करते हैं। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे और कैसे वो अप्लाई होती हैं। सो पोर्टफोलियो एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑफर, portfolio of products on offer to their customers rather than individual products or brands, will in many cases have branded products which complement each other in some way. Analysis of such portfolio becomes a necessity as the strengths and weaknesses of a company in such portfolio determine its internal capabilities to compete in a market and fulfill the customer expectations. The tool to identify the strengths and weaknesses of a company is a product portfolio analysis. The product portfolio analysis was proposed in 1973 by Peter Drucker as a way to classify the current and expected profitability. तो ये important है, the tool to identify the strengths and weaknesses of a company is a product portfolio analysis. और इसको किसने किया था introduce? It was introduced in 1973 by Peter Drucker as a way to classify the current and expected profitability. Drucker classified the offerings of a particular company into 7 category, that is today's breadwinner, tomorrow's breadwinner, yesterday's breadwinner. तो तीन तो यही हो गई, टुडे, टुमारो एंड येस्टरडे breadwinners, developments, sleepers, investments in managerial ego and failures. He classified the products in the first 3 categories, that is today's breadwinners, tomorrow's breadwinners and yesterday's breadwinners, as strengths of the company, while those in the last 2 categories, that is investment in managerial ego and failures, as the weaknesses. तो ये आपके लिए important है कि कौन से वाले जो थे वो strengths थे। तो bread winners जितने भी हैं they are the strengths, and जितने भी weaknesses हैं या failures हैं उनको उन्होंने जो है उसमें classify कर दिया है, weaknesses में classify कर दिया है, that is the investment in managerial ego and failures. Then such portfolio analysis was made by other renowned entities also. द मोस्ट कोटेड वंस आर एज फॉलोज। सबसे पहला इसके अंदर जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का टूल आता है दैट इज़ द BCG मैट्रिक्स, एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ द BCG मैट्रिक्स. A company should have a portfolio of products with different growth rates and different market shares. The portfolio composition is a function of the balance between the cash flows. Margins and cash generated are a function of the market share. जिन्होंने ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया, ब्रूस हेंडरसन, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। तो BCG मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, बॉस्टन कंसल्टिंग group, and is used for the evaluation of the organization's product portfolio in marketing and sales planning. तो ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो मार्केटिंग और सेल्स प्लानिंग के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा दिया गया था. BCG analysis is mainly used for multi-category or multi-product companies. All categories and products together are said to be a part of a business portfolio. It aims to evaluate each product, that is the goods and services of the business are in 2 dimensions, that is market growth and market share. यानी ये 2 dimensions हैं जिसके अंदर आपका evaluation किया जाता है, that is market growth कितना है आपके product का और market share कितना है आपके पास. तो ये जो 2 tools हैं या 2 dimensions हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से 2 dimensions हैं जिसके अंदर आपका इवैल्यूएशन किया जाता है प्रोडक्ट का. सो दैट इज़ मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. The combination of both dimensions creates a matrix into which the products form the portfolio are placed. तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके वो इस पोर्टफोलियो में प्लेस किए जाते हैं. अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मार्केट शेयर यानी मार्केट रिलेटिव पोजीशन, और यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रोथ रेट.
राइट। तो अब हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार। तो स्टार में क्या है, आपका ग्रोथ रेट भी हाई है और जो आपकी रिलेटिव मार्केट पोजीशन है वो भी हाई है। ठीक है। अगर हम कैश काउस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ग्रोथ रेट है वो लो है, लेकिन जो आपकी मार्केट पोजीशन है वो हाई है। यानी आपके पास मार्केट का शेयर तो अच्छा है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है। और उसी तरीके से जो स्टार है, आपके पास रिलेटिव पोजीशन भी अच्छी है और आपकी जो ग्रोथ रेट है वो भी ज़्यादा है। तो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हाई हाई दोनों तरफ है, दैट इज़ द स्टार। स्टार मीन्स वेरी हाई। एंड यहाँ पर जो लो है, जिसकी ग्रोथ लो है लेकिन जिसका शेयर हाई है, दैट इज़ द कैश काउ। और अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो इसमें आपका रिलेटिव पोजीशन और द मार्केट शेयर इज़ लो बट योर बिजनेस ग्रोथ इज़ हाई। और वैसे ही अगर हम डॉग की बात करें तो यहाँ पर आपका रिलेटिव पोजीशन भी लो है और बिजनेस ग्रोथ भी लो है। ठीक है। तो कैश काउस की अगर हम बात करें तो कैश काउस के बारे में क्या लिखा गया है। कैश काउस आर द प्रोडक्ट्स विच हैव अ हाई मार्केट शेयर, जिनका मार्केट शेयर हाई है इन अ लो ग्रेड ग्रोइंग मार्केट, जिसकी ग्रोथ रेट लो है। मतलब जो मार्केट है वो इतना आसानी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका शेयर है उस मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। As the business growth rate of the market is low, cash cow gains the maximum advantage by generating the maximum revenue due to its higher market share। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस आपका जो ग्रोथ रेट है वो तो काफ़ी लो है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो मैक्सिमम तब होता है क्योंकि आपका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। Therefore, for any company, the cash cow is the category of the products which require minimal investment but ensure the higher returns। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ लो है तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम लगती है, लेकिन जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली लाइन तो आप बिल्कुल ही मार्क करें क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए कैश काउस में वैसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। These higher returns raise the level of overall profitability of the firm because such excess revenue generation can be used in other businesses which carry the products falling in the category of stars, dogs or question marks। तो इन प्रोडक्ट से जितनी भी अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन होती है, क्योंकि हायर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, तो यहाँ पर जितना भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आई है उसको आप दूसरे बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉग, क्वेश्चन मार्क्स एंड स्टार्स। Strategies for cash cows. Cash cows are the most stable product or service line for any business. Mark करिएगा, most stable product or service line for any business, and hence the strategy includes retention of the market share for such category। इसलिए इसकी strategy include करती है कि जितना भी आपका market share है उसको आप retain करके रखें। As the market growth rate is low and acquisition is less, the customer retention is high. Thus, customer satisfaction programs, loyalty programs, and such other promotional methods form the core of the market plan for the cash cow product। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी कम होती है और जो आपका कस्टमर रिटेंशन है वो भी ज़्यादा है और आपके पास मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, इसलिए यहाँ पर जो है रिटेंशन, इसको रिटेन करके रखना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो सब रिटेंशन पर ही फोकस करती हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रमोशनल मेथड्स होते हैं जिसमें आपको मार्केटिंग काफ़ी अच्छी की जाती है। तो वो वाले जो जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्ट्रैटेजीज चलाते हैं उनको कैश काउ प्रोडक्ट्स कहा। अब अगर यहाँ पे अपन को एक कैश काउ प्रोडक्ट का एग्जांपल लेना है तो आप सोच के देखिए, अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल आईएनसी, तो आपको पता होगा एक आईपैड करके उनका प्रोडक्ट आता है। और जब हम कैश काउ की बात कर रहे हैं तो कैश काउ में हमारा मतलब होता है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो हाई है और जो आपका ग्रोथ रेट है, यानी मार्केट का ग्रोथ रेट जिसको अपन कंपेयर करते हैं, वो कंपैरेटिवली लो है। तो इस सिचुएशन को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट ध्यान में आता है दैट इज़ द एप्पल आईपैड, क्योंकि इसके अंदर जो इनका मार्केट शेयर है वो ज़्यादा तो है, लेकिन यहाँ पर जो इसका ग्रोथ रेट है दैट इज़ कंपैरेटिवली लोअर एज़ कम्पेयर टू द आईफोन। तो इसलिए, क्योंकि आप नोटिस भी कर सकते हैं कि आईपैड के इतने जनरेशन्स नहीं आए हैं जितने आपके आईफोन के आ चुके हैं।
तो यहाँ पर जो इसका मार्केट कैप्चर है वो ज़्यादा है, यानी कैश जनरेशन तो है यहाँ पर। जब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो उसको हम कैश जनरेशन से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आईपैड के थ्रू कैश जनरेशन तो ज़्यादा है ही, लेकिन जो कैश का यूजेज है यानी मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो कंपेरेटिवली लो है। इसलिए अगर हम कैश काउ की बात करें तो यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दैट इज़ द एप्पल आईफोन। अगला जो अपना प्रोडक्ट है दैट इज स्टार्स। स्टार्स बेसिकली सबसे ऊपर, अगर आप स्टार्स को ऐसे ही जनरली इंटरप्रेट करो तो स्टार्स का मतलब होता है फेमस और समथिंग दैट इज़ एट द टॉप। तो जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर्स दैट इज़ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट दोनों ही हाई माने जाते हैं। सो द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ एनी कंपनी। यानी किसी भी कंपनी के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये वाला जो प्रोडक्ट होता है जो स्टार कैटेगरी में आता है that is at the top. This is so because for such category products both the market share as well as the growth rate is high. तो ये आपको याद होना ज़रूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो ग्रोथ रेट है और मार्केट शेयर है दोनों ही हाई होता है। Unlike cash cows, stars cannot be complacent when they are at the top because they can immediately be overtaken by another company which capitalizes on the market growth rate. तो इसलिए stars कभी भी complacent नहीं होते, उनको ग्रो करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो complacent होंगे या स्लो डाउन होंगे वैसे ही दूसरी की दूसरी कंपनीज उसको ओवरटेक करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए स्टार्स की कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट्स को हमेशा ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्रोथ रेट यानी कैश का जो यूजेज है वो भी हाई होगा और जो उसका मार्केट शेयर है वो भी हाई होगा, यानी कैश जनरेशन भी हाई होगा। However, if the strategies are successful, a star can become a cash cow in the long run. Strategies for the stars: all types of marketing, sales, promotion, and advertising strategies are used for the stars. Similarly, in stars, because of the high competition and rising market share, the concentration and investment needs to be high in the marketing activities so as to increase and retain the मार्केट शेयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो है आपका जो मार्केट शेयर है वो भी ज़्यादा है, तो उस शेयर को मेंटेन करने के लिए और कंपटीशन को कट डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें इन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ताकि जो आपका मार्केट शेयर है आप उसको रिटेन कर पाएँ और जो यहाँ पे आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आप बढ़ा सकें। तो अगर हमें इसका एक एग्जांपल लेना है स्टार प्रोडक्ट्स का, तो एप्पल आईएनसी की ही अगर अपन बात करें तो एप्पल का जो आईफोन है हम उसको स्टार कैटेगरी में डाल सकते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट ऑफ एप्पल आईएनसी। और एप्पल में से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी कैश जनरेशन भी करता है और जिसका मार्केट शेयर भी हाई है और इसी में ही काफ़ी कंपटीशन भी है, क्योंकि अगर एप्पल आईएनसी खुद को इतना अपग्रेड नहीं करेगा तो बाकी की जो कंपनीज़ हैं वो इसको टेक ओवर कर लेंगी। सिंस इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है तो इसका मार्केट शेयर भी मेंटेन्ड है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम स्टार प्रोडक्ट्स की बात करें, सिर्फ एप्पल आईएनसी के बीसीजी मैट्रिक्स को कंसिडर करें तो उसके अंदर एप्पल आईफोन ऐसा है जो स्टार कैटेगरी के अंडर फॉल ऑन होता है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन मार्क। तो जो कि इसका सजेस्ट करता है क्वेश्चन मार्क की ही अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में जहाँ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जिनके बारे में कुछ क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होती, उनको आप क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में डालते हो। Several items the company might come up with an innovative product. Several times the company might come up with an innovative product which immediately gains good growth rate. However, the market share of such product is unknown. यानी जिसका हम मार्केट शेयर नहीं बता सकते कि कितना है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तब काफ़ी हाइप रहता है इनका, लेकिन धीरे धीरे ही जो है इनका हाइप ख़त्म होने लगता है, लेकिन हम मार्केट शेयर कभी भी इसका स्टेडीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। The product might lose customer interest and might not be bought anymore, in which case it will not gain the market share. The growth rate will go down and it will ultimately become a dog. So, on the other hand, the product might increase the customer interest more and more people might buy the product, thus making the product a high market share product. From here, the product can move to be a cash cow as it has lower competition and high market share. Thus, question marks are the products which may give high returns but at the same time may also be flop and may have to be taken out of the market. This uncertainty gives the quadrant the term question mark. यानी जो question mark वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका श्योरिटी नहीं रहती कि ये किस डायरेक्शन में जाएंगे। हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये प्रोडक्ट आता है तो इसकी हाइप अच्छी होती है लेकिन मार्केट शेयर आने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि इसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाए और इसका कैश जनरेशन उतना ही रहे तो ये कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट कम हो जाए और लोग इसे ख़रीदना ही बंद कर दें और आपको इस प्रोडक्ट को जो है
मार्केट से निकालना पड़ सकता है, तो उन केसेस में ये डॉग की कैटेगरी में जो है आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। अगर इसने मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे प्रोडक्ट्स में कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता, तो ये कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ये भी हो सकता है कि ये जो है कभी भी मार्केट शेयर गेन ना कर पाए, लोग इसको खरीदे ही ना आगे जाके, तो ये डॉग में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके आप डायरेक्शन पे श्योरिटी नहीं लगा सकते कि ये कहाँ जाएगा या इसका फ्यूचर कहाँ है, उनको आप क्वेश्चन मार्क वाले कैटेगरी में कवर करते हो। The major problem associated with having question marks is the amount of investment which it might need, and whether the investment will give returns in the end or whether it will be completely wasted. ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि आगे जाकर क्या होगा इसका। हो सकता है ये कि इन्वेस्टमेंट अपन को रिटर्न अच्छा दे, ये भी हो सकता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाए। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि क्या इसका आगे होगा, तो इसीलिए ये वाले प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अनसर्टन होते हैं और अनसर्टन कैटेगरी के अंदर ये लोग आते हैं। इसमें कैश यूसेज तो ज़्यादा होता ही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, और यहाँ पर कैश जनरेशन के बारे में आप श्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर जो मार्केट शेयर है यानी कैश जनरेशन वो लो होता है, और जो मार्केट ग्रोथ रेट है यानी कैश यूसेज वो काफ़ी हाई होता है। स्ट्रैटेजीज फॉर क्वेश्चन मार्क के लिए आप क्या कर सकते हो? एज दे आर न्यू एंट्री प्रोडक्ट्स विद हाई ग्रोथ रेट है मतलब कैश का यूजेज ज़्यादा है। द ग्रोथ रेट नीड्स टू बी कैपिटलाइज इन सच अ मैनर दैट क्वेश्चन मार्क्स टर्न इनटू हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट। तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी ताकि ये हाई मार्केट शेयर का प्रोडक्ट बन जाए। तो दोनों ही कैटेगरीज में आपको जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इसको कैश काउ या स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। न्यू कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, तो इसको मार्क करें कि न्यू कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर कन्वर्टिंग क्वेश्चन मार्क्स टू स्टार्स और द कैश काउ। मैंने बोला ही था कि आपको इसको कैश काउ या स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्दर मोर टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी for the product as well as the possible future of the product, and a hard decision might have to be taken if the product goes into a negative profitability. ठीक है, तो आगे जाकर आपको एक हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ सकता है अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी में चला गया, यानी ये उतना जनरेशन नहीं कर पा रहा जितना इसको करना चाहिए, तो फिर आपको इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो आप यहाँ पर एप्पल आईएनसी का एक एग्जांपल प्रोडक्ट का ले सकते हैं, दैट इज़ द एप्पल वॉच। एप्पल वॉच या फिर आप एप्पल टीवी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो एप्पल वॉच और एप्पल टीवी का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो शुरू में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर लगा था, लेकिन जो ये मार्केट शेयर है वो अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए हैं, और हमें श्योरिटी भी नहीं है कि ये आगे जाके क्या होगा। हो सकता है ये प्रोडक्ट फेज़ आउट हो जाए और आगे इनका प्रोडक्शन ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि आगे जाके लोगों को एप्पल वॉच अच्छी लगने लगे या एप्पल टीवी जो है वो फेज़ में आ जाए, तो फिर आगे जाकर ये कैश काउज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टार्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर ये डॉग्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आप क्वेश्चन मार्क के अंदर डालते हो जिसमें आपको ये तो पता है कि कैश का यूजेज तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि मार्केट शेयर कितना है यानी कैश जनरेशन कितना है। तो ग्रोथ रेट तो है लेकिन यहाँ पर मार्केट शेयर हमें नहीं पता, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क के अंदर आता है। सो हाई ग्रोथ रेट बट लो मार्केट शेयर, तो ये क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो एप्पल वॉच का। शुरू में जो था काफ़ी पॉपुलर था, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ बहुत एडवर्टीजमेंट्स थे, कुछ लोगों ने खरीदी भी, लेकिन अभी इसका जो फ्यूचर प्लान है वो डिसाइडेड नहीं है कि ये किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकता है। डॉग्स में भी जा सकता है और कैश काउस में भी जा सकता है। मेरे पर्सनल अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये डॉग की कैटेगरी में जाएगा। अब हम आए डॉग की कैटेगरी में, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें दोनों ही चीज़ें लो होती हैं यानी मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ रेट भी नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो डॉग की कैटेगरी में आते हैं। Products are classified as dogs which have the low market share and low growth rate. Thus, these products neither generate the high amount of cash nor they require higher investments. मतलब ये जनरेशन भी नहीं देते कैश का और इनके अंदर जो है इतनी इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती. However, they are considered as negative profitability products mainly because the money already invested in the product कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स. तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपने जो पैसा इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, तो आप चाहते तो उस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे.
Thus, over here, businesses have to take the decision whether they should divest these products or they can revamp them and thereby make them saleable again, which will subsequently increase the market share of the प्रोडक्ट. तो इन प्रोडक्ट्स के लिए बिजनेसेस दो डिसीजन ले सकते हैं. एक तो ये है कि आप प्रोडक्ट को डिवेस्ट कर दो, यानी आप निकाल दो प्रोडक्ट को, विड्रॉ कर दो मार्केट से, या फिर आप अच्छी जो है इसको रीवैम्प करो, रीडिज़ाइन करो और फिर से मार्केट में लॉन्च करो ताकि ये मार्केट शेयर जो है वो गेन कर पाए. तो जिसमें दोनों ही चीज़ें लो होती हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉग्स. Strategies for dogs क्या होगी? Depending on the amount of cash which is already invested in this quadrant, the company can either divest the product altogether or it can revamp the product through rebranding, innovation and adding the features, etc. However, moving a dog towards the star or a cash cow is very difficult. तो ये बहुत important है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो डॉग प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है उसको स्टार या कैश काउ की तरफ मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है. इट कैन बी मूव्ड ओनली टू द क्वेश्चन मार्क रीजन वेयर अगेन द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अननोन. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप क्वेश्चन मार्क के रीजन में मूव कर सकते हो जहाँ पर आपको मार्केट शेयर का नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है यानी ग्रोथ रेट है वो तो हाई है. दस इन केसेस ऑफ डॉग प्रोडक्ट्स द डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड. ज़्यादातर डॉग प्रोडक्ट्स के केसेस में जो है डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है. अगर हम यहाँ पर ही एप्पल के ही प्रोडक्ट का बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं आईपॉड, जो एप्पल का ही था जिसमें आप सॉन्ग सुन सकते थे, एप्पल आईपॉड. अब मेरे ख्याल से विड्रॉ हो चुका है, आई एम नॉट रियली श्योर ये मार्केट में आता भी है या नहीं, लेकिन हाँ ये डॉग्स की कैटेगरी में है क्योंकि इसका मार्केट शेयर भी लो है और प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं लगती. तो ऐसे प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट भी आपके पास है कि आप आईफोन के अंदर जो है सॉन्ग सुन सकते हो, तो आईपॉड की अब इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एप्पल का जो आईपॉड है वो डॉग्स की कैटेगरी में कवर होता है. ठीक है. अब यहाँ तो जैसे मैंने आपको एप्पल कंपनी के एग्जांपल्स दे दिए चारों कैटेगरीज के लिए. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन योरसेल्फ बिल्ड अ बीसीजी मैट्रिक्स जिसके अंदर ये चारों कैटेगरीज होंगी. किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए और उसका अपने आप से बनाने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई है या. नाउ व्हाट वी हैव आर द सीक्वेंसेस इन द बीसीजी मैट्रिक्स, कि आप बीसीजी मैट्रिक्स में किस तरीके के सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बेसिकली आपको हॉप करना है तो आप कौन सी सीक्वेंसेस को फॉलो कर सकते हो. दो सीक्वेंसेस डिफाइन है, दैट इज़ द सक्सेस सीक्वेंस एंड द डिज़ास्टर सीक्वेंस. अब यहाँ पर जब हम सक्सेस सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये मूव होता है यूँ इस तरफ, यानी आपको कैश काउस की कैटेगरी में आना है बेसिकली जब आप क्वेश्चन मार्क और स्टार कैटेगरी से निकलकर कैश काउस में आते हैं. दैट इज़ द सक्सेस सीक्वेंस जहाँ पे आपका स्टेबल प्रोडक्ट तो होता है, आपका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है. यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब ज़रूरी नहीं है, तो आपका मार्केट शेयर तो वैसे भी ज़्यादा ही है, हाई मार्केट शेयर है और आपकी जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल. तो अब और इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन सिट बैक एंड एन्जॉय. सो दैट इज़ द सक्सेस सीक्वेंस. तो कैश काउज में आना ज़रूरी होता है. एंड अदरवाइज जो दूसरा आपका सीक्वेंस है दैट इज़ द डिज़ास्टर सीक्वेंस. जब आप स्टार्स की कैटेगरी से निकलकर डॉग्स में आ जाते हो या फिर क्वेश्चन मार्क से निकलकर डॉग्स में आ जाते हो, दैट इज़ द डिज़ास्टर सीक्वेंस, क्योंकि आप हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट से निकलकर डॉग्स की कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ पर मार्केट शेयर भी आपका लो हो गया और ग्रोथ रेट भी आपकी लो हो गई. So let us read what is written about these sequences. So success sequence in the BCG matrix. The success sequence of the BCG matrix happens when a question mark becomes a star and finally it becomes a cash cow. यानी question mark पहले star category में आता है और फिर star से सीधा cash cow की category में आ जाता है. This is the best sequence which really gives a boost to the company's profit and growth. बोला भी गया है this is the best sequence. तो ये line important है that this is the best sequence. The success sequence, unlike the disaster sequence, is entirely dependent on the right decision making. कि आपकी decision making क्या कहती है, आपका ये sequence उस पर depend करता है. डिज़ास्टर सीक्वेंस इन द बीसीजी मैट्रिक्स. अगर हम डिज़ास्टर सीक्वेंस की बात करें तो डिज़ास्टर सीक्वेंस ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स हैपन्स व्हेन अ प्रोडक्ट विच इज़ अ स्टार ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर माइट बी मूव टू अ क्वेश्चन मार्क. मतलब पहले ये स्टार से क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में जा रहा है और उसके बाद इट फॉल्स डाउन फ्रॉम कॉम्पिटिशन एंड इज मूव टू द डॉग कैटेगरी एंड फाइनली इट मे हैव टू बी डिवेस्टेड बिकॉज ऑफ इट्स लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट और ये क्वेश्चन मार्क से निकलकर डॉग्स की कैटेगरी में आ जाता है. Thus, the disaster sequence might happen because of the wrong decision making. This is
दिस सीक्वेंस अफेक्ट्स द कंपनी एज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर लॉस्ट इन द डिवेस्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रोडक्ट डिवेस्ट हो गया, मार्केट से बाहर निकल गया, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था इट इज़ ऑल गॉन एंड वेस्टेड. Along with this, the money coming in from the cash cow which is used for other product too is lost. तो साथ ही साथ जो आपका कैश काउ से पैसा आ रहा था, वो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो विड्रॉ करना चाहेंगे, तो वो आपका जो कैश काउ का पैसा है वो भी बाकी प्रोडक्ट्स के तहत लूज हो जाएगा. ठीक है. अब हम आगे देखें स्टेप्स इन द बीसीजी मैट्रिक्स. तो बीसीजी फ्रेमवर्क को अगर आपको बनाना है किसी भी, उसका तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सो स्टेप्स इन द बीसीजी मैट्रिक्स. बीसीजी मैट्रिक्स इज अ फ्रेमवर्क टू हेल्प अंडरस्टैंड विच ब्रांड्स द फर्म शुड इन्वेस्ट इन, मतलब कौन से ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना है, एंड विच वन शुड बी डिवेस्टेड, तो कौन से ब्रांड्स को आपको डिवेस्ट करना है. फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व. सबसे पहला स्टेप है चूज़ द यूनिट. उसके बाद डिफाइन इट्स मार्केट, कि कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है. कैलकुलेट द रिलेटिव मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर आपके कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पर कितना है. फाइंड आउट द मार्केट ग्रोथ रेट, कि आपकी मार्केट ग्रोथ रेट कितनी है, आप अपना प्रोडक्ट डालते भी हो तो वो किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है. ड्रॉ द सर्कल्स ऑन अ मैट्रिक्स. उसके बाद आप जो है डिफाइन करें. तो सबसे पहला स्टेप है आपका चूज द यूनिट. PCG matrix can be used to analyze the strategic business units, separate brands, products, or a firm as a unit itself. Which unit will be chosen will have impact on the whole analysis. कौन सा यूनिट आप चूज़ करते हो वो डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा एनालिसिस उस डिसीजन पे डिपेंड करेगा. तो आप या तो जो अगर आपकी कंपनी के अलग अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं तो उनके हिसाब से बनाइए, अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो उनके हिसाब से बनाइए, या फर्म वाइज आप अलग अलग बना सकते हैं. लेकिन जिस भी तरीके से आप बनाते हो वो पूरा का पूरा एनालिसिस उस डिसीजन पे डिपेंड करता है. Therefore, it is essential to define the unit for which you will do the analysis. तो आपको essentially डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस यूनिट के लिए जो है एनालिसिस कर रहे हो. ठीक है. अगला जो है दैट इज डिफाइन द मार्केट. Then in the second step, you have to define the market. Defining the market is one of the most important things to do in this analysis. तो बहुत ज़रूरी है, सबसे important चीज़ है कि आपको market को define करना पड़ेगा. This is because incorrectly defined market may lead to poor classification. अगर आपने correctly market की study नहीं करी तो आपका classification गलत हो जाएगा. Example के तौर पर इन्होंने दिया भी हुआ है, if you want to do the analysis of the Daimler's Mercedes-Benz car brand in passenger vehicle market, इट वुड एंड अप एज अ डॉग. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी में इसको एनालिसिस करते हो तो ये डॉग की कैटेगरी में जाएगा. डॉग की कैटेगरी मतलब कैश जनरेशन भी लो है और मार्केट शेयर भी कम है, बट ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल में बहुत कंपटीशन है. और अगर आप मर्सिडीज़ बेंज की बात करते हो तो मर्सिडीज़ बेंज इज़ अ लग्जरी कार, इट इज़ नॉट अ रेगुलर पैसेंजर कार. तो यहाँ पर अगर आप उसको उस कैटेगरी में प्लेस करते हो, अगर आप पैसेंजर व्हीकल में उसका एनालिसिस करते हो तो डेफिनेटली इट विल गो इनटू द डॉग कैटेगरी. लेकिन अगर आप उसको लग्जरी कार के उसमें स्टडी करते हो इट वुड गो इनटू अ कैश काउ, बिकॉज उसमें अब कोई ग्रोथ, इतनी जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इनोवेशन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट हैज़ अ गुड मार्केट शेयर इन लग्जरी कार मार्केट, सो इट इज़ अ स्टेबल प्रोडक्ट. तो बेसिकली इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस मार्केट सेगमेंट को स्टडी करना चाहते हो. जैसे यहाँ पर हमने देखा एक ही प्रोडक्ट यानी मर्सिडीज बेंज, दोनों दोनों दो दो मार्केट कैटेगरीज है, दैट इज़ लग्जरी कार एंड पैसेंजर कार. तो दोनों मार्केट्स में ये अलग अलग कैटेगरीज में जाता है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से मार्केट की स्टडी करना चाहते हो. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियरली डिफाइन द मार्केट टू बेटर अंडरस्टैंड द फर्म्स पोर्टफोलियो पोजिशन. देन यू हैव कैलकुलेट द रेलिवेंट relative मार्केट शेयर, यानी आपका मार्केट शेयर आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कितना है, ये डिटरमाइन करना भी बहुत ज़रूरी है. सो स्टेप 3 इज़ कैलकुलेट द रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और द मार्केट शेयर. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग योर ओन ब्रांड्स मार्केट शेयर, दैट इज़ द रेवेन्यूज, बाय द मार्केट शेयर ऑफ द टॉप परफॉर्मर ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर इन दैट इंडस्ट्री. मतलब जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका मार्केट शेयर कितना है, उसके रेवेन्यूज़ कितने हैं, आपको उसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकालना होगा, तो वो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर होगा. फॉर एग्जांपल आप कितना कमाते हो और आपका जो कॉम्पिटिटर है यानी टॉप कॉम्पिटिटर उसका रेवेन्यू कितना है, तो आप डिवाइड कर लीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपका शेयर कितना आता है. For example, if your competitor's market share in the refrigerators industry was 25% and your firm's brand market share was 10% in the same year,
your relative market share will be only 0.4. Relative market share is given on the x-axis. Its top left corner is set at 1, midpoint at 0.5 and top right corner at 0. बेसिकली इसी जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है उसी बेसिस पर आप रिलेटिव मार्केट शेयर निकालते हो। जैसे यहाँ पे बोला है कि आपका जो टॉप कॉम्पिटिटर है उसका 25% शेयर है, तो और आपका शेयर 10% है, तो रिलेटिव मार्केट शेयर हो जाएगा 0.4, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 25. ओके, then you have step number 4, that is find out the market growth rate. The industry growth rate can be found out in the industry reports, which are usually available online for free. It can also be calculated by looking at the average revenue growth of the leading industry firms. Market growth rate is measured in the percentage terms. तो ये percentage terms में determine होती है। आप चाहो तो online भी इसको access करके निकाल सकते हो कि market growth rate कितनी है। The midpoint of the y-axis is usually set at 10% growth, but this can vary. Sometimes industry grow for years but an average of 1 or 2% per year. तो कभी कभार इंडस्ट्रीज ग्रो करती है लेकिन एवरेज बेसिस पर 1 या 2% के हिसाब से ही ग्रो होती हैं. Therefore, when doing the analysis, you should find out what growth rate is seen as significant. That is the midpoint to separate cash cows from the stars and question marks from dogs. तो बेसिकली ग्रोथ रेट एनालिसिस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मिड वे पर कौन सी ग्रोथ रेट है जो कि कैश काउ और स्टार्स को सेपरेट करती है और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क और डॉग्स को भी सेपरेट करती है. जब आप ये पूरी स्टडी कर लोगे उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी स्टडी को जो है मैट्रिक्स में प्लेस कर सकते हो. यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, ड्रॉ द सर्कल्स ऑन द मैट्रिक्स. आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द मेजर्स यू शुड बी एबल टू प्लॉट योर ब्रांड्स ऑन द मैट्रिक्स. You should do this by drawing the circles for each brand. The size of the circle should correspond to the proportion of the business revenue generated by that brand. तो यहाँ पर जो हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं वो यही है जिसके अंदर आप मैट्रिक्स बनाओगे. तो यहाँ पर मार्केट शेयर के बेसिस पर आप यहाँ पे डिवाइडिंग कैटेगरी फॉर्म करोगे कि क्या क्या डिवाइडिंग कैटेगरी होगी. यहाँ पे डॉग्स होंगे, काउस होंगे और जो आपका क्वेश्चन मार्क है और जो आपका स्टार है, फिर आपको उस बेसिस पे इसको प्लेस करना पड़ेगा अपनी स्टडी के बाद. तो ये जो डिवाइडिंग कैट मार्क होता है इट कम्स आउट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ रेट. और आपका कितना रेलेवेंट शेयर होगा, ये सर्कल कितना होगा, वो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर से डिसाइड होगा. राइट, तो इन बेसिस पे ही आपका जो मैट्रिक्स है वो बनाया जाता है. अब मैट्रिक्स बनाने के बाद कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं मैट्रिक्स के बेसिस पर. So strategies based on the BCG matrix, there are four possible strategies for any product or strategic business unit, and these are the strategies which are used after the BCG analysis. कौन कौन सी चार स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं. सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बिल्ड. बिल्ड का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना, आगे बढ़ना. सो by increasing the investment, this product is given an impetus such that the product increases its market share. यानी यहाँ पर आप और इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करना चाहते हो ताकि आपका मार्केट शेयर जो है यानी जो कैश जनरेशन है वो बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ क्वेश्चन मार्क टू अ स्टार कैटेगरी एंड फाइनली टू अ कैश काउ. तो ये क्या आप ये जो आपका सक्सेस वाला सीक्वेंस था अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उसके लिए आपको बिल्ड कैटेगरी या बिल्ड जो बिल्ड स्ट्रैटेजी है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना चाहते हो. आपका जो इसमें कैश इन्वेस्टमेंट है यानी ग्रोथ रेट है वो ऑलरेडी हाई है, लेकिन आप इसके अंदर और उसका जनरेशन करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन मार्क से पहले स्टार की तरफ बढ़ते हो जहाँ पर दोनों ही चीज़ें हाई हो जाती हैं, यानी ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है. और फिर आप स्टार से कैश काउ में आते हो जहाँ पर ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाती है लेकिन कैश जनरेशन हाई रहता है. ठीक है. अब यहाँ अगली कैटेगरी आती है अपनी होल्ड की कैटेगरी. ये वाली कैटेगरी बेसिकली जो है वो कैश काउ में आती है. सो the company cannot invest or has its other investment commitments due to which it holds the product in the same quadrant. For example, holding a star there itself as high investment to move to a star into a cash cow is currently not possible. तो जो आपके प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, आप उसको होल्ड करके रखें. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार में हैं जहाँ पर हाई ग्रोथ रेट है और हाई आपका जो क्या बोलते हैं कैश जनरेशन है वो भी है, तो आप वहीं पर ही उसको होल्ड करके रखें क्योंकि स्टेबल ग्रोथ रेट पाने के लिए, क्योंकि स्टेबल ग्रोथ रेट के लिए आपको हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. तो स्टेबल ग्रोथ रेट पाने के लिए अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप उसको स्टार कैटेगरी में होल्ड करके रखें.
नेक्स्ट इज़ दी हार्वेस्ट, जो कि ज़्यादातर जो है कैश काउ प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे आप अपने बेनिफिट्स को रीप करते हो। सो बेसिकली that is the harvest strategy. So best observed in the cash cow scenario, wherein the company reduces the amount of investment and tries to take out the maximum cash flow from the said product, which increases the overall profitability. तो मैंने कहा था जितना भी बेनिफिट आपने अक्रू कर लिया है, अब आप उसको रीप करें, मतलब बेसिकली जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था वो हो चुका है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अब आप कर चुके हो, अब इसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड एन्जॉय वॉट एवर प्रॉफिट्स दैट इट इज़ जनरेटिंग। और जो चौथी स्ट्रैटेजी है दैट इज़ डिवेस्ट, विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन द डॉग टाइप प्रोडक्ट, जिसके लिए दोनों ही लो होते हैं, दैट इज़ मार्केट शेयर इज़ ऑल्सो लो एंड the market growth is also low. So therefore, it is best observed in the case of dog quadrant products, which are generally divested to release the amount of money already stuck in the business. Thus, the BCG matrix is the best way for a business portfolio analysis. The strategies recommended after the BCG analysis helps the firm decide on the right line of action and help them in implementing the same. The original BCG matrix. अब originally ये कैसा था? At the height of its success in the late 1970s and early 1980s, the growth share matrix or approaches based on it was used by about half of the Fortune 500 companies, acting to the according to the estimates. The matrix helped the companies decide which markets and businesses units uh, to invest in on the basis of the two factors, that is the company competitiveness and market attractiveness. तो दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनके बेसिस पर डिसाइड किया जाता था। सो वो कौन सी दो चीज़ें हैं? कंपनी competitiveness and the market attractiveness. तो ये लाइन important है, with the underlying drivers for these factors being relative market share and growth rate respectively. The logic was that market leadership expressed through high relative share resulted in sustainably superior returns. In the long run, the market leader obtained a self reinforcing cost advantage through scale and experience that competitors found difficult to replicate. High growth rates signaled that the markets in which leadership could be most easily built. Putting these drivers in a matrix revealed four quadrants, each with a specific strategic imperative. Low growth, high share, that is cash cows, should be milked for cash to reinvest in the high growth. तो ये क्या कह रहे हैं? लो ग्रोथ एंड हाई शेयर, मतलब जहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है, अब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और जिसमें शेयर ज़्यादा है उनको आप कैश काउ कहो। एंड इसको कैश काउ क्यों कहा? क्योंकि दे कैन बी मिल्क्ड फॉर कैश, यानी ये एक मशीन आपकी जनरेट हो गई जिससे अब आप कैश निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अब ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन जितना होना था हो चुका है, आप सब्सटैंशियल मार्केट शेयर एक्वायर कर चुके हो, सो नाउ यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड एन्जॉय व्हाटएवर इट इज़ गिविंग यू। और ये जो कैश आप निकाल रहे हो इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो हाई ग्रोथ एंड हाई शेयर प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ द स्टार्स, जिसको आप आगे कैश काउ में बदल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाई ग्रोथ और हाई शेयर की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चेंजेस भी जो है रैपिड स्पीड से इस वाले प्रोडक्ट में हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपका शेयर भी ज़्यादा है, तो आपको बने रहने के लिए उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। High growth and low share, that is question mark, should be invested in or discarded depending upon their chances of becoming the stars. अगर उनके stars बनने के chances ज़्यादा हैं तो आप उनमें investment करें, नहीं तो फिर वो dogs में convert हो जाएंगे, और अगर वो dogs में convert होंगे तो आपको उसके अंदर disinvestment करनी पड़ेगी या divestment करनी पड़ेगी। Low share and low growth pets are essentially worthless and should be liquidated. तो dogs तो generally जितने भी हैं उनको आपको liquidate करना पड़ेगा या divest करना पड़ेगा या reposition करना पड़ेगा, giving that their current position is unlikely to ever generate cash. इस प्लीज चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो उनकी करंट पोजीशन है वो हाईली अनलाइकली है कि ये आगे जाकर कभी भी कैश जनरेशन कर पाएंगे। The utility of the matrix in practice was twofold. The matrix provided conglomerates and diversified industrial companies with a logic to redeploy cash from cash cows to the business units with higher growth potential. तो ये जो मैट्रिक्स है इसने आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर दी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे चार पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, और उसके बाद जो कैश काउस हैं उनका कैश कैसे आप री इन्वेस्ट करके स्टार्स को कैश काउ में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। This came at when the units often kept and reinvested their own cash, which in some cases had the effect of continuously decreasing the returns on the investment.
conglomerates that allocated cash smartly gained an advantage. तो जिन लोगों ने स्मार्टली कैश को डिप्लॉय किया यूजिंग दी स्ट्रैटेजीज उनके पास काफ़ी एडवांटेज रहा। अदरवाइज बाकी कंपनीज क्या कर रही थी, खुद ही अपना कैश निकाल कर और उसको री इन्वेस्ट कर रही थी जिसमें उनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। अगर आप कैश जनरेट करके फिर उसको री इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर खुद ही का कैश जो आपके पास पड़ा हुआ था उसी को वापस इन्वेस्ट करते हो, then it is not going to generate substantial returns. It also provided companies with simple but powerful tool for maximizing the competitiveness, value and sustainability of their business by allowing them to strike the right balance between the exploitation of the mature businesses and exploration of new business to secure future growth. तो इन्होंने एक्चुअली में एक आपको पाथ दे दिया जिसमें आप जो आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है और जो नया बिजनेस है दोनों के बीच में आप एक बैलेंस बनाकर चल सकते हो। नॉर्मली इसमें से आपसे ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ मैट्रिक्स के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स, तो बट ऑब्वियसली अगर ये मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस भी हुआ है तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया होगा। तो अब अपन को बस ये देखना है इसके अंदर कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें इस मैट्रिक्स को एज अ फेलियर देखा गया या इसको क्रिटिसाइज किया गया। The BCG matrix has lost some of its popularity following the development of other models and drawn criticism for making some false suppositions such as। तो उसके कुछ जो पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए थे या डिवाइस किए थे बीसीजी मैट्रिक्स के जो ऑब्जर्वेशंस निकले थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉल्स क्लेम्स हैं। तो अपन को ये देखने की ऐसे कौन से फॉल्स क्लेम्स हैं जिसके बारे में कहा गया। It assumes that a business unit with higher market share will generate more cash। तो ये अपन ने कैश काउ में देखा था। While it has been observed that a unit that has a high market share needs to keep investing in itself to sustain the share and therefore may absorb cash instead of generating it। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिंस आपके बिजनेस का शेयर हाई है तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको जो कैश जनरेट हुआ है वो आपको री इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक फॉल्स क्लेम है कि जो आप कैश जनरेशन कर रहे हो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, बल्कि जो आप कैश जनरेट कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ही बिजनेस में वापस इन्वेस्ट होता जाएगा। So therefore, this was a false claim according to the allegations. Also, the matrix seems to ignore interdependencies among the corporation's business unit. A dog, for example, may be helping a question mark or a star with cash। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये मैट्रिक्स बना है इसने हालांकि रिलेशनशिप्स तो बता दिए लेकिन इसने काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर दी, और इसमें से एक चीज़ थी इंटरडिपेंडेंसी। जब हम इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने प्लेस किए हैं क्वाड्रेंट वाइज, हो सकता है वो एक दूसरे की भी हेल्प कर रहे हों और आपको पता ना चले। जैसे कि जो डॉग्स हैं हो सकता है वो कैश जनरेट कर रहे हों और वही कैश जो है आप स्टार्स और क्वेश्चन मार्क्स में अप्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली जो इंटर डिपेंडेंसीज हैं मतलब इन क्वाड्रेंट्स की एक दूसरे में जो डिपेंडेंसी है इन कैटेगरीज की, उनको आपने इग्नोर कर दिया। ये था इनका दूसरा एलिगेशन। The matrix also seems to use broad definitions of the market share and market growth, overlooking the niche market. A unit that makes scooter tires, for instance, may have a big market share in this niche segment, but only a minuscule share of the overall tire market. The corporation that owns this unit may use it as a cash cow for the benefit of a star or a question mark in its portfolio। तो ये कहना चाहते हैं कि आपने दो चीज़ें देखी, सिर्फ एक है मार्केट शेयर और एक है मार्केट ग्रोथ, लेकिन जो चीज़ आप भूल गए वो है नीश मार्केट। नीश मार्केट अपन ने देखा ही था कि जो नीश मार्केट होता है दैट इज़ आइदर इट इज़ प्रोडक्ट वाइज कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपका दबदबा है तो वो आपका नीश बन जाता है। नीश ऑल्सो मीन्स स्पेशलिटी। तो उस हिसाब से अपन अगर देखें तो ये बोल सकते हैं कि हाँ आपने नीश मार्केट्स को जो है इग्नोर कर दिया, यानी ऐसे मार्केट्स जहाँ पर आपकी स्पेशलिटी रही है तो आपने उन मार्केट्स को इग्नोर कर दिया। इसके बाद कहा गया है द मैट्रिक्स ऑल्सो सजेस्टेड और इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर सजेस्टिंग दैट ऑल कॉरपोरेशंस विल आइडेंटिफाई the units or products in the four quadrants and that units or products will travel through all the four quadrants in their life cycles। तो ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो आपका और जो कि सारे कॉरपोरेशंस हैं वो चारों क्वाड्रेंट्स में ही अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कुछ कॉरपोरेशन सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स में अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, कुछ तीन में कुछ एक में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्वाड्र जो कॉरपोरेशंस हैं वो चारों क्वाड्रेंट्स में अपने प्रोडक्ट को रियलाइज़ या आप कैटेगराइज कर पाएँ।
Market growth rate is only one factor that makes an industry attractive. Similarly, relative market share is only one factor that gives a unit a competitive advantage. According to the critics, the matrix ignores other factors that determine the profitability. At least some critics suggest the use of GE और McKinsey metrics. तो ये कहते हैं कि ये जो BCG metrics है, इन्होंने कुछ दो ही टर्म्स को जो है मेनली कंसिडर किया है, दैट इज़ मार्केट शेयर एंड योर मार्केट ग्रोथ। लेकिन इन्होंने जो काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उनको आपने इग्नोर कर दिया। द मेट्रिक शेयर ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द मेट्रिक्स डज नॉट गारंटी प्रॉफिटेबिलिटी। जो इसमें मार्केट शेयर आप दिखा रहे हो, वो गारंटी नहीं देता कि इससे जो है प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी। The BCG matrix does not consider decreasing markets enough. Cash cows could disappear without reason. बिल्कुल सही बात है कि जो कैश काउस है, हालांकि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, वो कैश जनरेशन वो करता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर टाइम के साथ साथ जो है वो फेज़ आउट होने लगे। यानी आपका मार्केट शेयर टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ भी हो सकता है। काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट्स भी जो है वो मार्केट से कभी-कभी गायब होने लगते हैं। इसीलिए बीसीजी मैट्रिक्स ने जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया है कि फ्यूचर में जाके जो है आपका मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग रेट पे आ सकता है और आपके कैश काउज़ जो है वो एग्ज़ॉस्ट हो सकते हैं। तो एक चीज़ जो है बीसीजी मैट्रिक्स से ये बिल्कुल रह गई। फिर both axes have been assigned the same value. In practice this value can depend on the strategy. तो ये टेक्निकल पॉइंट है कि दोनों ही एक्सेस को जो है उन्होंने सेम वैल्यू असाइन करी है, और ये वैल्यू जो है ये स्ट्रैटेजी वाइज डिफरेंट भी हो सकती है। द कोहेरेंस एज रिगार्ड्स द कंटेंट बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ग्रुप्स इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा ही कोहेरेंस के बारे में। बीसीजी मैट्रिक्स डज नॉट शो व्हाट द कंपटीशन इज डूइंग। एग्जैक्टली, एंड बीसीजी मैट्रिक्स में ओवर सिंप्लीफाई द असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपकी छूट जाएं। तो बेसिकली ये सिर्फ रीडिंग पर्पसेस के लिए है जो भी क्रिटिसिज्म आया बीसीजी मैट्रिक्स का। इसके बाद जो है अपन को ये देखना है कि बीसीजी ने इस जो मैट्रिक्स का क्रिटिसिज्म आया उसके लिए क्या रिस्पॉन्स दिया। सो बीसीजी रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म दैट इज मैट्रिक्स 2.0। ये लोग लेकर आए मैट्रिक्स 2.0 in a particular in a paper published in 2014. The BCG, while defending the basic principles of the matrix, acknowledges that the business world and distribution of companies across the matrix have changed. क्या चेंज किया इन्होंने? इट रिकमेंड्स दैट स्ट्रैटेजिक एक्सपेरिमेंटेशन विद ओरिजिनल मैट्रिक्स टू अलाउ एडेप्टेशन टू एन इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक एक्सपेरिमेंटेशन करी थी ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, जिसके बाद इन्होंने जो करंट बिजनेस सिनारियो है उसके अकॉर्डिंगली अपने मैट्रिक्स को अडेप्ट किया है। और ये भी कह रहे हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो आगे जाके ये भी चेंज हो सकता है। The paper admits that in the modern business environment, the matrix needs new measure of competitiveness to replace its horizontal axis. Horizontal axis मतलब ये वाली जो होती है ना, ये axis होती है horizontal, ये होती है vertical। ओके, सो हॉरिजॉन्टल एक्सेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस में कॉम्पिटिटिवनेस का जो है वो नया फैक्टर आ सकता है। अ मार्केट शेयर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर टू द परफॉर्मेंस एनी मोर, बट ऑब्वियसली कि मार्केट शेयर के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते कि वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एनालाइजर है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं। इट सेज कंपनीज नीड टू लुक एट न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स टू रिन्यू देयर एडवांटेज एंड डिजिस्ट फ्रॉम वेस्टिंग द रिसोर्सेज। They need to invest in more question marks to help them promising ones that grow into stars। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कंपनीज के अभी नीड ऑफ द आर ये है कि वो क्वेश्चन मार्क्स में ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश करें कि वो क्वेश्चन मार्क्स को जो है अपने स्टार्स की तरफ लेकर आए। Responding to the marketplace, they should also cash out the stars, retire the cows, and maximize the information value of pets, yani dogs. The BCG gives the example of Google with its portfolio of AdWords, AdSense, Android, and other products, and says that at that company, portfolio management is embedded in the organizational abilities that facilitate strategic experimentation. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं बीसीजी ने, जो गूगल का एग्जाम्पल दिया है उसमें बस वो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने गूगल ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स जो है अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करे हैं, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी कुछ चले भी हैं।
तो ये कहना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है गूगल का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आपके, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो उसका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर ही इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ में इस चीज़ को जो है एम्बेड कर लिया है कि जो भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अप्लाई होंगी, और जो उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगी उसको ही अप्लाई किया जाएगा। At Google, question marks are generated and a few are selected and tried out before they are scaled up. तो क्वेश्चन मार्क्स तो यहाँ पे जनरेट किए ही जाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स क्या होते हैं? जिनमें हाई इनोवेशन होता है लेकिन मार्केट शेयर अभी नहीं आया है, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स को जो है बनाया जाता है। उसके बाद उनको सिलेक्ट करके टेस्ट किया जाता है, ट्राई आउट किया जाता है, इससे पहले कि उसको वो और उसका प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में लॉन्च करें, तो पहले उसको ट्राई आउट किया जाता है। Making suggestions for using BCG Matrix 2.0, the paper puts forward four practical imperatives that the businesses can use in the strategic implementation experimentation. So basically BCG Matrix ने जो है एक्स्ट्रा फोर जो इसमें imperatives हैं वो दिए हुए हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी सिर्फ रीडिंग पर्पसेस के लिए है। आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क एनीथिंग आउट ऑफ दीज टॉपिक्स कि इसमें क्या इसका क्रिटिसिज्म था और आगे क्या हुआ। ठीक है। सो व्हाट वी शुड स्टॉप आई थिंक हियर इन दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो से अपन जो है आगे की और दो मैट्रिक्स अपन को पढ़ने हैं वो अपन करेंगे, और कंटिन्यू करते हुए लेट अस ट्राई कि अपन जल्दी ही इस चैप्टर को भी जो है वाइंड अप करने की कोशिश करें। ओके, सो यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।